Welcome, friends. Today, in this session, we study about the layout manager. So, we start the session. Okay, what is the layout manager? The layout manager is automatically arrange your control within the window. Means what I must? Means we say that all the component that we have to so far the positioning by the default layout manager. Means we say that a layout manager is automatically arrange our controls within a window by using some type of algorithm. It is the automatic process. So if we have a program with the GUI environment such as the window, then we are use this a layout manager. So it is a very simple one. The layout manager that can automatically arrange your the control within a window. Okay. So most of the times if we create the component, हम क्या करते हैं कि हम कंपोनेंट बनाते हैं और जैसे ही हम कंपोनेंट बनाते हैं we can be add this component into a window. Means if you manage all the controls, all the components, then it is the very difficult one. Okay. Means if you there are the first it is a very tedious to manually to manage all the component. Okay. And means sometime you can be adjust width, height, position. That is a very tremendous uh, means it is a very difficult for the programmer point of view. So the all the components that can be managed as per the screen size or as per their position in the our window screen by the automatically by the Java program. So we use the layout manager. It is the manually it is very difficult for a programmer. So a layout manager is used in our the program. So I think all of you getting this. A layout manager is arrange your the control within the window automatically. So this is a introduction for this layout manager. So we just figure in this all of you knowing that what is the component. We know that our component is where we say our component is available means each container object or each container has store the component, but each component object has a layout manager associated with it. कौन सा भी कंट्रोलर ऑब्जेक्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट ये लेआउट मैनेजर के एसोसिएटेड होता है. तो लेआउट मैनेजर क्या है? अ लेआउट मैनेजर इज एन इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास that implement the layout manager interface. Okay. So layout manager is an interface. So we create use a layout manager. आपको अगर सेट करना है तो फॉर दिस पर्पज वी यूज द मेथड. दैट मेथड इज कॉल्ड एज द सेट लेआउट. इफ यू डोंट नो कॉल द सेट लेआउट method, then default layout manager can be used. Whenever a component is resized,
the layout manager use the position of each component within it. आपने अगर कंटेनर को रिसाइज किया है तो लेआउट मैनेजर सभी कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली रिसाइज करता है या मैनेज करता है. So I think all of you knowing that what is the exactly a layout manager. तो मैं एक सिंपल थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ. लेआउट मैनेजर इज एन इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास दैट इम्प्लीमेंट द लेआउट मैनेजर इंटरफेस. ये हमने पढ़ा है. तो मैं अगर हमने लेआउट मैनेजर को सेट करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? सेट लेआउट. So the layout manager is set by the set layout method. If we don't set the layout, then default layout can be a called. So what is the layout manager? Layout manager is also keeps the track of the list of the component that's stored by their names. तो लेआउट मैनेजर और इसका और क्या काम है? ये जो सभी कंपोनेंट जो हमने विंडो पे या हम स्टोर करते हैं तो उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड ये लेआउट मैनेजर यूज करता है. लेआउट मैनेजर इज आल्सो नोटिस्ड ईच टाइम वी ऐड द कंपोनेंट टू अ कंटेनर. सब लेआउट मैनेजर इज मेंटेन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. So I think all of you understand what is the exactly a layout manager. So layout manager का जो मैंने अभी बोला है कि एक सिंपल what is how to use this set layout manager. ये जो मेथड है set layout, इसका जो सिंटैक्स है ये आपको एक बार समझ में आना चाहिए. ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि set layout का सिंटैक्स जो है वाइड set layout, layout manager and their object. Okay, so that is a very important one. तो इसका सिंटैक्स एक बार आप ध्यान में रखिए. वाइड सेट लेआउट, लेआउट मैनेजर और उसका ऑब्जेक्ट. द लेआउट मैनेजर का जो मेथड है हम यूज करते हैं. तो लेआउट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द लेआउट ऑब्जेक्ट? लेआउट ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू द डिजायर्ड लेआउट मैनेजर. ओके, सो आई थिंक द if we don't use the object, then at that time you can be a pass the null value. यहाँ पे हमने एक लिखा है if you want to be disable the layout manager and the position of the component manually, then we pass the null value. So by default, if you want to be manage the manually shape and the position of the each object, then at that time we use the set bound method of the that is defined in the by the component. ये set bound method हमने देखा है. तो और लेआउट मैनेजर के रिलेटेड दो मेथड्स है, मिनिमम लेआउट साइज एंड प्रेफर्ड लेआउट साइज. ये हम मेथड भी यूज कर सकते हैं, मिनिमम लेआउट साइज एंड प्रेफर्ड लेआउट साइज. वैसे ही कंपोनेंट के बारे में अगर आपको उसका साइज और गेट प्रेफर साइज एंड गेट मिनिमम साइज, ये हमने मेथड कंपोनेंट क्लास के लिए पढ़ा था. तो लेआउट मैनेजर के लिए दो मेथड है, मिनिमम लेआउट साइज एंड प्रेफर्ड लेआउट साइज. वैसे कंपोनेंट के लिए कौन सा मेथड है? गेट प्रेफर्ड साइज एंड गेट मिनिमम साइज. So I think that is the introduction is more than sufficient for this layout manager, and we turn to the actual class of these or types of the layout. So what are the different types of the layout? अब layout manager के बारे में आपको समझ में आ गया है तो मैं एक बार बोलता हूँ. layout manager is an interface that is implemented by
all the classes of the layout manager. तो लेआउट मैनेजर क्या है, ये इंटरफेस है और उसमें हम ऑल द क्लासेस ये यूज़ करने वाले हैं। तो फॉलोइंग क्लासेस, जैसे कि फर्स्ट क्लास जैसे मैंने बोला है कि फ्लो लेआउट, सेकंड ग्रिड लेआउट, थर्ड बॉर्डर लेआउट, कार्ड लेआउट और ग्रिड बैक लेआउट। दीज आर द 5 डिफरेंट क्लासेस फॉर योर द सिलेबस। तो हम ये लेक्चर में फ्लो लेआउट और बॉर्डर लेआउट देखेंगे और नेक्स्ट लेआउट में ग्रिड और कार्ड देखेंगे। तो आई थिंक स्टार्ट द फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट इज़ द वेरी सिंपल वन। फ्लो लेआउट इज़, ये जो है पहला लेआउट, ये फ्लो लेआउट को हम बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट लेआउट। डिफ़ॉल्ट लेआउट, सपोज़ हमने लेआउट मैनेजर सेट किया है और हमने जो भी लेआउट है तो वो हमारा कौन सा रहता है, डिफ़ॉल्ट लेआउट इज़ द फ्लो लेआउट। द लेआउट मैनेजर, तो उसका जो बेसिक फ्लो लेआउट इज़ अ वेरी सिंपल लेआउट और विच इज़ द वेरी सिमिलर हाउ और वर्ड फ्लो इन द टेक्स्ट एडिटर। अब हम जैसे कि हमारा टेक्स्ट एडिटर में हम जैसे लाइन एक ड्रा करती है, जैसे वर्ड टाइप करते हैं तो पहला वर्ड सेव होता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसा ही फ्लो लेआउट का है। जैसे हमारा फ्लो हो जाएगा कंपोनेंट का, वैसे वन बाय वन ऑल द कंपोनेंट्स that can be stored in container and container can manage the layout manager. So flow layout is a very simple one. अब यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है हमारे कैसे आएंगे, हमारा लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, बट इट कैन बी अ पोजिशन बाय यूजिंग द अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर. So in they can be a use a small space. अब यहाँ पे एक फ्लो लेआउट के लिए सिंपल कंस्ट्रक्टर है, फ्लो लेआउट by default layout. Second one is the flow layout int how, and third one is the flow layout int how vertical, horizontal and vertical. ये सिंपल है, वेरी सिंपल वन है. तो फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा कौन सा है, वो डिफ़ॉल्ट लेआउट है और विच centers the component and leaves the 5 pixel space between each component. तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वो सेंटर लेता है बाय डिफ़ॉल्ट और दो कंपोनेंट के बीच में 5 स्पेसेस छोड़ता है अगर हम फ्लो लेआउट को डिफ़ॉल्ट लेआउट करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि फ्लो लेआउट के बारे में अगर पूछा डिफ़ॉल्ट क्या है तो सेंटर अलाइनमेंट और 5 पिक्सल स्पेस बिटवीन ईच कंपोनेंट। और सेकंड वन इज कौन सा है, हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए हमारे पास 3 कांस्टेंट्स है। पहला कांस्टेंट जो है लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो यहाँ पे उसका जो सिंटेक्स क्या है, फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट, फ्लो लेआउट डॉट सेंटर, फ्लो लेआउट डॉट राइट. So these 3 values left, center and right alignment we can be used. अगर हमको तीसरा जो हमारा लेआउट मैनेजर है जो विथ अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो थर्ड वो जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस हमको देना है, तो वी कैन बी सेट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्पेस. So I think the flow layout is finish. In this we use the default layout, first constructor, the second one is the alignment and third alignment with the spacing horizontal and vertical. तो यहाँ पे हमारा अगर लेआउट मैनेजर हमको सेट करना है तो ये सिंपल मेथड है, सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट डॉट सेट. अब यहाँ पे एक हम सिंपल एक प्रोग्राम जो एग्जिस्टिंग है हमारा, तो वो हम देखेंगे. जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रोग्राम यहाँ पे हमारे है, तो अगर हमको समझो हमने बटन डेमो का, ये समझो बटन डेमो, ओके. तो ये हमने प्रोग्राम देखे थे बहुत सारे. अब यहाँ पे अगर हमारा सेट लेआउट बटन डेमो,
तो इसका जो एक लेआउट हमको सेट करना है या फ्लो लेआउट सेट करना है। तो ये प्रोग्राम में हमने क्या किए, फ्रेम है और बहुत सारे चेक बॉक्स है। तो ये यहाँ पे हमको उसका लेआउट सेट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा सिंपल जो उसका हम मेथड, जैसे कि सिंपल आप डायरेक्टली कर सकते हो फ्लो लेआउट। ओके, तो हमने यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट लिया है या ओके, सिंपल हमने यहाँ के पे क्या किया है, सिंपल क्रिएट द फ्लो लेआउट और उसका ऑब्जेक्ट। अगर उसको ऑब्जेक्ट को अगर हमको सेट करना है या उसको वैल्यू देना है, तो आप जैसे भी कंटेनर में सब मेथड्स ऐड करते हो, तो उसके बाद में उसको हम क्या बोलते हैं, एफ डॉट एफ इक्वल टू न्यू फ्लो लेआउट इन ब्रैकेट। जैसे कि आपके पहला अगर कंस्ट्रक्टर होगा फ्लो लेआउट डॉट सेंटर करें, CNTR। ओके, तो ये हमारा लेआउट सेट हो गया। अगर आपको लगता है कि इसका अगर डेमो देना है, इसमें हमने क्या किया है, सिंपल बटन डेमो, ये हम प्रोग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये फ्रेम है, तो हम यहाँ पे ओके जावा सी बटन डेमो डॉट, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम में हम नया प्रोग्राम लिखते हैं, तो एग्जिस्टिंग वन का हम यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है बटन डेमो एग्जिस्टिंग, सब फ्रेम के कंट्रोल्स है। तो शायद यहाँ पे हमारा चॉइस डेमो ले लेंगे। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पे हमारा क्या करना है, हमको सेट सेट लेआउट ओके इन ब्रैकेट न्यू न्यू फ्लो लेआउट सेट। ओके, सिंपल एक ही लाइन है। और अगर आपको उसका कांस्टेंट सेट करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि जैसे कि फ्लो लेआउट डॉट सेंटर, जो भी है। ओके, इन दिस वे यू कैन बी सेट योर द लेआउट। इतना ही है, बाकी अ, इसमें कुछ भी नहीं है। चॉइस डेमो अगर आपको देखना है तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो। Okay, so in this way you can be set over the layout, and there is a no problem
this. So we turn to the next one. Okay. यहाँ पे जैसे कि हम लेआउट सेट करते हैं तो उसका जो आउटपुट है हमारा सिंपल ये फॉर्मेट में आ जाता है। तो ये हमने अभी तक देखा है। तो हम अभी बॉर्डर लेआउट देखेंगे। बॉर्डर लेआउट क्या है? बॉर्डर लेआउट जो है इट इज़ अ सिंपल कॉमन लेआउट. In this, we can be use the total 5 areas. One is the large area and remaining is the 4 narrow fixed width component. तो यहाँ पे हमारे 4 साइज होते हैं. फर्स्ट वन इज द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और मिडल वन को क्या करते हैं हम? सेंटर कहते हैं. तो बॉर्डर लेआउट जो है तो उसका डिफ़ॉल्ट लेआउट कौन सा है? बॉर्डर लेआउट. और बॉर्डर लेआउट विथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो सिंपल है ये बॉर्डर लेआउट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. तो बॉर्डर लेआउट इज द डिफॉल्ट वन. एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो यहाँ पे उसका जो पहला है सेंटर, बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर, बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ, बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट, बॉर्डर लेआउट डॉट वेस्ट एंड बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ. तो हमको अगर कंपोनेंट ऐड करना है तो हम यहाँ पे जो हमारा बेसिक सिंटेक्स क्या है? वाइड ऐड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रीजन. ये इम्पोर्टेंट है हमारा. जैसे कि फ्लो लेआउट में हम डायरेक्टली ऐड करते थे तो यहाँ पे हमारा बेसिक सिंटेक्स वाइड ऐड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट विद द रीजन. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया? बॉर्डर लेआउट का जो है बेसिक 5 रीजन्स है. पहला सेंटर जो मिडल में है, बाकी लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम. तो हमारा जो है जैसे कि हम लेफ्ट के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? ईस्ट और वेस्ट. राइट के लिए वेस्ट और साउथ एंड नॉर्थ, टॉप एंड बॉटम. तो ये आपको एक बार समझ में, अगर यहाँ पे वैसे भी आप बॉर्डर लेआउट को स्पेस भी ऐड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट्स है वो कांस्टेंट्स हमको ऐड करने के अलोंग विद द कंपोनेंट. यहाँ पे कंपोनेंट आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, बटन, चेक बॉक्स और एनीथिंग. थोड़ा सा मैं डेमो देना चाहता हूँ आपको बॉर्डर लेआउट के बारे में. सिंपल है. यहाँ पे हमने ये चेक बॉक्स डेमो देखा था, ये कट कर देंगे. हमारा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है. ओके. तो यहाँ पे मैंने एक फाइल लिया है. ओके. तो यहाँ पे जो मेरा फाइल है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है बॉर्डर लेआउट डेमो डॉट क्लास फाइल इम्प्लीमेंट किया है. यहाँ पे मैं एक कंट्रोल लिया है. ओके. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे हमने एग्जांपल देख लेंगे. ये बॉर्डर लेआउट है. अब बॉर्डर लेआउट का बेसिक ये देखिए आप, लेफ्ट साइड. ओके. लेफ्ट, राइट, top, bottom and center one. How border layout is look likes in this way. It is the left button, right button, top button, bottom button. आप कौन सा भी बटन से यहाँ पे, और यहाँ पे और सेंटर एरिया है. तो ये आपका बॉर्डर लेआउट है. अब एक यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लेफ्ट बटन लिया है और वहाँ पे मैंने बॉर्डर लेआउट सेट किया है. हाउ टू सेट द बॉर्डर लेआउट? सिंपल वन, बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी सेट लेआउट पे सेट कर सकते हो, या डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करके भी उसको सेट लेआउट के थ्रू. जैसे कि मैंने सेट लेआउट न्यू बॉर्डर लेआउट यहाँ पे सेट किया है. सिंपल मैं ये जो मेरा कोडिंग पार्ट है वो सिंपल मैं एक कॉपी करता हूँ यहाँ पे, तो शायद ये आपको समझ में आए. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है सिंपल. अब यहाँ पे मैं पहला
जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि लेफ्ट, ओके, लेफ्ट इक्वल टू न्यू बटन, और यहाँ पे मेरा जो भी टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेफ्ट ऐड कर दूंगा, ओके, सिंपल। अब यहाँ पे आपको बॉर्डर लेआउट सेट करना है, तो सेट लेआउट इन ब्रैकेट न्यू बॉर्डर लेआउट। आपका बॉर्डर लेआउट सेट हो चुका है। अगर आपको रीजन ऐड करना है, रीजन, तो आप कैसे ऐड करोगे? सिंपल ऐड इन ब्रैकेट, आपका कंपोनेंट कौन सा है? पहला लेफ्ट, और उसका जो कांस्टेंट क्या है? बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट कैपिटल। ईस्ट को क्या करना है? कैपिटल करना है। और ये आपका प्रोग्राम कोडिंग पार्ट फिनिश। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है, न्यू न्यू बॉर्डर बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट, ओके। तो हम प्रोग्रामिंग एक बार रन करते देखते हैं। एक बार रन करने के बाद आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। ओके, तो देयर इज नो एरर। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि ये लेफ्ट बटन, ओके, लेफ्ट बटन यहाँ पे आ गया। अब जैसे आपको राइट करना है, अगर राइट भी करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सिंपल कॉपी करो। अभी लेफ्ट की जगह पे क्या करना है आपको? राइट। यहाँ का राइट का भी आपको सिंपल लिखना पड़ेगा। राइट इक्वल टू न्यू बटन, ओके। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? राइट, ओके। तो आपको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस ईस्ट, आपको कौन सा बटन सेट करना है? यहाँ पे वेस्ट, ओके, क्योंकि जो लेफ्ट की जगह पे आपका कंट्रोल कौन सा आ गया? ये राइट। और ईस्ट की जगह पे आपका कौन सा आ गया? सॉरी, ईस्ट की जगह पे आपका कौन सा आ जाएगा? डब्ल्यू। तो ये मैं सेव करता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो सिंपल है, मेरे को प्रोग्राम पहले कंपाइल, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट आ गया और वैसे इधर राइट आ गया। आपको ऐसे भी टॉप और बॉटम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वैसे ही आपको टॉप करना है, तो टॉप इक्वल टू न्यू बटन, और इन ब्रैकेट इसको हम बोलेंगे टॉप, और उसको ऐड करना है, तो ऐड इन ब्रैकेट टॉप बॉर्डर लेआउट डॉट सब। अब ये आपको एक बार समझ में आना चाहिए, ये साउथ और जो है नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ दोनों ही रहते हैं। तो ये टॉप में आएगा यहाँ के, बॉटम में आएगा, ये हमको देखना पड़ेगा साउथ, ओके। देयर इज अ प्रॉब्लम इन एरर टॉप, we say that there is the top but there is a no, okay। so we हाँ, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। ओके, तो ये टॉप यहाँ पे नीचे आ गया।
तो ये हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस टॉप हम बॉटम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है लेफ्ट राइट या टॉप जो भी है